Jai Sri Swaminarayan. SSGM School CBSE runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankuwa heartily welcomes you to this online education platform. Students of class 10, today we will continue our chapter number 2 in our English subject, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. And this is the fourth video of this chapter. This is the fourth part of this chapter. In our previous three videos, we discussed about the Nelson Mandela, about his life, about his struggle, and about the activities he did for the abolition of Apartheid Act. We also discussed about the swearing ceremony. It means about the inauguration function, where did it was held and when did it was held. We also discussed about the Apartheid Act. It is a racial discrimination on the basis of color of the people prevented in the South Africa during the 20th century. And then we also discussed about comrades and their struggle. Comrades means the people, the persons who were with Nelson Mandela during the anti-apartheid activity, during the abolition of apartheid. तो कॉमरेड्स यानी कि वो लोग जो नेल्सन मंडेला के साथ थे, उनके साथी जो ये मूवमेंट्स कर रहे थे अपार्थाइड एक्ट को निकालने के लिए, जो मूवमेंट वो चला रहे थे, उनके साथ जो ये वो कॉमरेड्स उनके साथी थे, जो पीपल्स थे, उनको कॉमरेड्स कहा है. और उनका स्ट्रगल, उन्होंने जो सफरिंग की, उन्होंने जो स्ट्रगल किए, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था. सो इन दिस वीडियो लेक्चर we will discuss more about this chapter. We also try to complete the rest of the paragraph of this chapter. So let us begin the reading and explanation of this chapter, where we reached in our last video, that is page number 21 in our English textbook. So please student, open your textbook, page number 21, last paragraph at the bottom. So let us start. In life, every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. So basically in every man's life there are two types of obligation. Obligation means responsibility, means duties. तो हर किसी इंसान की लाइफ में उसकी दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज होती हैं. So for one kind of responsibility is for his family, for his parents, for his wife, for his children, and then second type of responsibility is for his community, for his country and for his people. Okay, तो हर किसी इंसान की दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एक जो उसकी फैमिली के लिए होती है, उसके पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे, उनके लिए होती है, और दूसरी अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए. ऐसी दो टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि ऑब्लिगेशंस होती हैं. सो इन सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. So in civil and in human society, यानी कि हर किसी कंट्री में हर किसी इंसान को, एंड ईच मैन इज एबल, यानी कि वो हर कोई उसको एबल होता है कि वो अपनी कंट्री के लोगों के लिए और अपने पीपल के लिए जो उनकी ड्यूटी है वो पूरी कर सके. ओके, दोज ऑब्लिगेशन को वो फुलफिल कर सके. लेकिन पीपल हु लिव इन साउथ अफ्रीका and mostly the people of my birth, here my birth means according to Nelson Mandela, when he was in the South Africa, it means according to Nelson Mandela's time and the color of their community, यानी कि ये ब्लैक पीपल की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो ब्लैक एंड ब्राउन पीपल थे, जो वाइट पीपल नहीं थे, उन लोगों के लिए ये ऑब्लिगेशन को निभाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत ही हम कह सकते हैं मुश्किल था, उनके लिए इम्पॉसिबल था. सो इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर
who attempted to live as a human being was punished and isolated. यानी कि जो साउथ अफ्रीका में अगर कोई मैन, अगर कोई इंसान, अगर कोई पीपल ये काम करे, अगर वो अपने अटेम्प्ट करे टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, अगर कोई ह्यूमन बीइंग की तरह रहने की कोशिश करे तो उसको क्या करा जाता था, उसको आइसोलेटेड किया जाता था, उसको पनिश्ड किया जाता था, ठीक है. सो इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of scarcity and rebellion. So if a person in South Africa tried to fulfill his duty to his people and if he tried to fulfill the duty of his community and country, he was inevitably, it means cruelly ripped, it means उसको सजा दी जाती थी, ठीक है. सो punished, उसको क्या किया जाता था, inevitably, it means cruelly ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. It means जो ऐसा उसकी फैमिली के लिए जो कोई, या तो फिर उसकी कम्युनिटी के लिए कोई भी अगर इंसान काम करता है, उसको हेल्प करता है, तो उसको क्या किया जाता था, उसको वहाँ से अपार्ट, यानी कि उसको आइसोलेशन में भेज दिया जाता है, उसको उसकी फैमिली से दूर रखकर उसको कहीं दूर भेज दिया जाता था और उसको रिबेलियन की तरह पहचाना जाता था, क्योंकि उसने जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ ये काम किया था. सो ही और अ ट्विलाइट एक्जिस्टेंस ऑफ क्वेस, इट मीन्स उसको फोर्सफुली अलोन, यानी कि स्कैर्सी, यानी कि अलोन, एक अलग ही रहने को फोर्स किया जाता था. ओके, सो आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. So यहाँ पर नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, according to Nelson Mandela, that initially he was not interested in fulfilling the desire of his community to serve his community, but when he started to fulfill the needs of his people and his community, he was forced एंड उनको क्या कर दिया जाता, उनकी खुद की जो फैमिलीज थी उनसे उनको अलग कर दिया गया था, उनको उनकी खुद की फैमिली, उनके बच्चे, उनसे उनको अलग कर दिया जाता था, उनकी ड्यूटी उनको निभाने नहीं दी जाती थी, ठीक है. सो व्हाट इज दैट आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड, यानी कि उनको प्रिवेंटेड किया जाता था, किससे, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन टू माई सन. इट मीन्स कि उनकी खुद की फैमिली से उनको दूर किया जाता था, उनके सन से, उनकी वाइफ से, उनके, ठीक है. तो उनको जब वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने लगे तो उनको उनकी खुद की फैमिली से दूर कर दिया जाता था, ठीक है. सो आई वॉज नॉट बोर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. सो हियर नेल्सन मंडेला टोल्ड दैट he was not hunger for a freedom, he was born free and free from every way. यानी कि वो उनका जब बर्थ हुआ तब उनको कोई हंगर नहीं थी, यानी कि उनको भूख नहीं थी फ्रीडम की, क्योंकि वो जन्मे फ्रीडम में थे. और उनको जब वो बच्चे थे तब उनको ऐसा ही लगता था कि वो किसी भी जगह पर, कहाँ पर भी अपने फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द stars and ride the broad back of slow moving bulls. So here he was remembering his childhood memories, his childhood freedom, that he was able to run in the fields नियर माई मदर्स हट, यानी कि उनको फ्रीडम थी कहाँ पर, फील्ड्स. इट मीन्स फील्ड्स मीन्स जो मैदान थे, उनकी मदर की हट, हट मीन्स कॉटेज, वी कैन से, उनके मदर का जो घर था उसके पास जो बहुत बड़े खेत और जो फील्ड्स थे उसमें उनको जहाँ भी घूमना हो वहाँ उनको उतनी घूमने की फ्रीडम थी. इसके अलावा फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, इट मीन्स
Stream means a river who ran through the village of Nelson Mandela. So he was also able to swim in that river, free to roast meals under the star. यानी कि खुले आसमां के नीचे वो जहाँ चाहे वहाँ मील्स यानी कि ग्रेन्स, फूड को वो रोस्ट करके, इट मीन्स पका के खा सकते थे. एंड ऑल्सो एबल टू राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स यानी कि हम कह सकते हैं बैल. ठीक है, बैल के ऊपर वो बैठ के कहीं पर भी घूम सकते थे उसकी पीठ के ऊपर. सो व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही वाज एबल टू गो वेयर ही वेंट. ओके, so as long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. So जब तक वो अपने फादर का और अपनी कस्टम्स, इट मीन्स अपनी जो ट्राइब के कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड रूल्स थे उसको वो फॉलो करते थे, तब तक उनको कोई भी ट्रबल नहीं हुई थी जो भी लॉज बनाए गए थे इंसानों द्वारा या फिर गॉड के द्वारा. ठीक है, तो फिर जो ये लॉज बनाए गए थे उसकी वो जब तक हम कह सकते हैं कि जब तक वो अपने फादर को फॉलो करते थे, उनके रूल्स और रेगुलेशन थे, उनके कस्टम, ट्राइब के जो कस्टम्स थे, रूल्स थे, ट्रेडिशन थे, जब तक उनको वो फॉलो करते थे तब तक उनको कोई ट्रबल नहीं होती थी. ओके, सो he think that he was free, but it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. So उनको कब पता चला कि उनको जब पता चला कि उनकी जो चाइल्डहुड की जो फ्रीडम थी, जो ये जहाँ पर चाहे वहाँ जा सकते थे, घूम सकते थे, खाना खा सकते थे पकाकर, तो ये जो फ्रीडम थी वो क्या थी? एक इल्यूजन. हियर द वर्ड इल्यूजन मीन्स समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट. यानी कि कुछ जो ऐसी चीज़, जो ऐसी सोच हमको लगती है कि नहीं ये रियल है, फ्रीडम उनको ऐसा लगता है रियल है, लेकिन वो होती नहीं है. असल में वो फ्रीडम उनको मिलती नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी के अंडर में ही आते हैं. सो it was an illusion when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब उनको ये डिस्कवर हुआ, जब इनको पता चला कि जो उनकी बॉयहुड फ्रीडम थी वो जब वो यंग बने, जब वो यंगर बने, यानी कि वो जब बड़े हुए, तब उनको पता चला कि जो उनकी फ्रीडम थी वो इल्यूजन थी, यानी कि वो किसी दूसरे, टेकन फ्रॉम एनीवन एल्स, यानी कि किसी दूसरे इंसान से, वो दूसरे इंसान द्वारा उनकी जो फ्रीडम थी वो छीन ली गई थी. तब उन्होंने क्या किया? स्टार्टेड टू हंगर फॉर इट, यानी कि वो फ्रीडम को भूख, उस फ्रीडम को लेने की उनमें भूख जागी, हंगर जागी. सो एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. So initially he want freedom of only them himself. Okay, तो वो फिर शुरुआत में किसकी फ्रीडम चाहते थे? खुद की चाहते थे फ्रीडम. वो फ्रीडम कैसी थी? ट्रांजिटरी, इट मीन्स विच दैट इज नॉट परमानेंट. ओके, टेम्पररी टाइप की फ्रीडम चाहते थे. तो वो फ्रीडम कैसी थी? तो वो कौन सी चाहते थे फ्रीडम? बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी कि रात को बाहर रह सकें कहीं भी. रीड वॉट आई प्लीज, जो उनको पसंद वो पढ़ सकें, रीड कर सकें. एंड गो वेयर आई चूज, जहाँ पर भी उनको जाना हो वहाँ जा सके. सो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिटरी फ्रीडम he wanted in a initial. Okay, he want in a initial way. But later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potentials, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. So later, जब वो जोहानिसबर्ग में रहते तब उनकी लाइफ में बहुत मुश्किलें बढ़ी. तब उनकी ये जो फ्रीडम के लिए जो भी उनकी मांग थी, उनकी जो हंगर थी वो कैसी थी? तो वो जो भी चाहते हैं वो कर सकें, वो ऐसा काम कर सके जो वर्थफुल हो, जो वर्थवाइल हो, ऐसा काम उनको मिल सके वो कर सकें. वो जितने भी पैसे कमाते हैं वो अपने पास रख सकें, खुद की फैमिली हो, वो जिससे चाहे वो मैरिज कर सकें. सो दिस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट दे ही हैव. सो द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. तो जब तक वो लॉफुल लाइफ रहते हैं, यानी कि वो ऐसा कह रहे हैं इधर
कि जब तक वो लॉफुली रहें, जब तक वो लॉ को फॉलो करते रहें, किसी लॉ को तोड़े नहीं, किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़े नहीं, तब तक उनको कोई मुश्किल ही ना पड़नी चाहिए उनकी फ्रीडम में, तब तक वो फ्री ही रहने चाहिए. ओके, सो but then I slowly saw that not only I was not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. Here the word curtail, it means reduce. So जब उनको ये पता चला कि सिर्फ वही नहीं, जो वहीं से एक अकेले वही नेल्सन मंडेला ही नहीं थे जिनकी फ्रीडम छीन ली गई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनकी कम्युनिटी के लोग थे, उनकी भी फ्रीडम छीन ली गई थी. आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट curtained, but the freedom of everyone who looked like him. Here the word who looked like him, it means the people of Nelson Mandela's community. It means the people of black and brown color, okay, whose color is not white. So the people who were black and brown color, their freedom were reduced. It means curtailed. Okay. सो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि सिर्फ वही नहीं थे जिनकी फ्रीडम रिड्यूस की गई थी, उनकी फ्रीडम छीन ली गई थी, लेकिन उनकी कम्युनिटी के जितने लोग थे, जितने ब्राउन और ब्लैक कलर के पीपल्स थे उनकी कम्युनिटी, उन सब की फ्रीडम ऐसे ही छीन ली गई थी. किस तरह से? बाय रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, अपार्थाइड एक्ट से. ओके, सो that is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. So at that time, जब इनको पता चला कि ये सिर्फ मेरी ही फ्रीडम नहीं छीन ली गई है, लेकिन पूरी कम्युनिटी की फ्रीडम हमारी छीन ली गई है, that time he joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger. यानी कि जो उनकी सिर्फ खुद की फ्रीडम की हंगर थी, वो एक बड़ी फ्रीडम, एक बड़ी पूरी कम्युनिटी की फ्रीडम की जो भूख थी, हंगर थी, उसमें बदल गई. ठीक है. So now next, it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without home, that forced a life-loving man to live like a monk. So it was this desire of freedom of the people of South Africa. It was the people of Nelson Mandela's community that made Nelson Mandela a criminal, a monk, a family homeless people. यानी कि ये वो डिज़ायर था ना सिर्फ उनका बल्कि उनकी कम्युनिटी का, कि फ्रीडम के लिए जो ये इनका डिज़ायर था, उसने नेल्सन मंडेला को क्या बना दिया? एक, हम यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. जो एक फ्राइटेंड यंग मैन था उसको उन्होंने बोल्ड वन यानी कि एक बोल्ड इंसान में बदल दिया. दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिनको क्रिमिनल बना दिया. दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम. ओके, एंड दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक. ओके, मोंक यानी कि साधु हम कह सकते हैं. ठीक है. So I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. So here he says that I am no more virtuous. Means उनमें कोई अलग बात नहीं थी ऐसी, और वो ऐसा भी नहीं सोचते थे कि उन्होंने दूसरे इंसानों से ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था. लेकिन जब उनको ये लगता था कि अगर किसी दूसरे, उनकी कम्युनिटी का कोई दूसरा इंसान अगर वो फ्रीडम अपनी एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो वो खुद भी अपनी जो फ्रीडम थे उसको एंजॉय नहीं कर पाते थे.
वो उनको भी वही लगता था कि वो भी फ्रीडम नहीं है, जब उनका कोई दूसरा कम्युनिटी का इंसान उसको जब वो फ्रीडम नहीं ले पाता था, ठीक है, वो जब फ्री नहीं होता था. सो फ्रीडम इज indivisible. The chain on any one of my people were the chain on all of them. The chain on all of my people were the chain on me. So here he want to say that if one person of his community were not free, was not free, then all of our community were not free. And if all of his community were not free, then he was also not free. यानी कि अगर नेल्सन मंडेला की कम्युनिटी का कोई एक इंसान भी, अगर एक पीपल भी अगर फ्री ना हो, अगर वो कहीं गुलाम हो, कहीं पे स्लेव हो, तो उससे तो वो उसकी पूरी कम्युनिटी स्लेव ही होगी. और अगर वो पूरी कम्युनिटी स्लेव है, अगर वो पूरी कम्युनिटी कहीं पे गुलाम है, अगर वो फ्री नहीं है, फ्रीडम उसको नहीं मिली है, तो नेल्सन मंडेला को भी वो फ्रीडम नहीं मिली है, ठीक है. सो इट इज वन काइंड ऑफ चेन. नाउ आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. हियर द वर्ड ऑपरेशर. ऑपरेसर इट मीन्स अ पर्सन हु ऑपरेस्ड समवन. ऑपरेसर यानी कि वो इंसान, वो लोग जो किसी और को ऑपरेस्ड करते हैं, ठीक है. और oppressed means a person who oppressed by someone else. यानी कि ऐसा इंसान जो किसी दूसरे इंसान से oppressed हुआ, जो दूसरे इंसान के अंडर में उसका गुलाम बना, उसको क्या कहते हैं? oppressed. ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला? I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. तो वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेसर को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, जैसे ऑपरेस्ड यानी कि जो ऑपरेस्ड है, जैसे उसको जो किसी को गुलाम बना रहा है उसको भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, और जो गुलाम है उसको भी फ्रीडम मिलनी ही चाहिए. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. तो जो किसी एक इंसान को जो कोई प्रेजुडाइस, इट मीन्स जो किसी एक इंसान को क्या करता है, उसकी फ्रीडम छीन लेता है ना, तो वो कैसा होगा? वो हेट्रेड का शिकार होगा. वो क्यों छीनता है? क्योंकि उसके माइंड में प्रेजुडाइज हो गए, ठीक है, अ वन काइंड ऑफ हेटनेस विदाउट एनी गुड रीजन. और उसकी नैरो माइंडेडनेस और प्रेजुडाइज की वजह से ही वो किसी को अपना गुलाम बनाएगा, अपना स्लेव बनाएगा एंड उसकी फ्रीडम छीन लेगा. तो नेल्सन मंडेला ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों लोगों को फ्रीडम दिलानी चाहिए. एक जो कि ऑपरेस्ड है, जो कि गुलाम है, उसको तो फ्रीडम दिलानी ही चाहिए, लेकिन जो किसी इंसान को ऑपरेस्ड कर रहा है, जो किसी इंसान को अपना गुलाम बना रहा है, उसको भी अपनी जो ये नैरो माइंडेडनेस है और जो ये प्रेजुडाइज है, उससे उसको बाहर निकालना चाहिए. उसको ये समझाना चाहिए कि सभी इंसान एक ही हैं, सब इक्वल हैं. So that kind of freedom Nelson Mandela wants. So I am not free. Okay, यहाँ पर क्या है? I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. तो नेल्सन मंडेला यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं तब फ्री नहीं होऊंगा जब मैं किसी और की अगर फ्रीडम छीन लूँ तो मैं फ्री नहीं रहूँगा. उसी तरह से जैसे कि कोई अगर मेरी फ्रीडम छीन ले तो मैं फ्री नहीं होऊंगा. समझिए इधर क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि इफ समवन टेक्स हिज फ्रीडम देन ही वाज नॉट अ फ्री. ओके, अगर कोई हमारी फ्रीडम छीन ले तो हम फ्री नहीं रहेंगे. उसी तरह से अगर वो नेल्सन मंडेला के लोगों की भी फ्रीडम छीन ले तो वो भी फ्री तो नहीं रहेंगे. और नेल्सन मंडेला यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर मैं किसी और की फ्रीडम छीन लूँ तो मैं भी फ्री नहीं रहूँगा, उसी तरह से जैसे कोई मेरी फ्रीडम छीन ले. ठीक है. सो just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. Okay, sorry, just my freedom taken
from me. Okay, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. So both are not a human like. Okay, तो उन दोनों ने ह्यूमैनिटी को क्या किया है, रॉब्ड किया है. So now we completed the reading and explanation of this chapter. So now we will do the oral comprehension check and the exercise of this chapter in our Microsoft Teams meeting. So till that, thank you so much. Jai Sri Swaminarayan.